السلام علیکم۔ چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوائس نیوز محمد محمود اظہر کے ساتھ۔ پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اگر کوئی جو ہے بیمار ہے صرف 1 منٹ کے لیے لا کے لے کے گئے تو بھی فرق ادا ہوتا، لیکن اس مقام پر، اس دن، اس تاریخ پر جو وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت میں وہاں جانا ضروری ہے۔ تو حج کے 3 فرض یاد رکھ لیجیے۔ ایک تو احرام باندھنا ہے، دوسرا جو ہے آپ کے یہ عرفات کا قیام، پھر طواف زیارت ہے۔ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہو سکتا، اس کا خاص خیال ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو دم کے ذریعے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، یہ بھی آپ رکھیے۔ اب ماں باپ کی مسائل تو آپ سیکھتے رہے، دیکھتے رہے اور بتاتے رہے، جیسا بھی ممکن ہے، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ کرتے جائیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اللہ کے ذکر اور فکر میں رہیے۔ جو دعا آپ چاہتے ہیں کیجیے، وہ جائز دعا ہے، جتنی دعا کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ یہ مقدس مقامات ہیں۔ اسی طرح یہاں سے جب مدینہ شریف جائیں گے تو مدینہ شریف کا مقام و مرتبہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضیلت سب سے افضل ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا قبر شریف کا جو حصہ ہے وہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ عرش الہی سے بھی افضل ہے، مکہ مکرمہ سے بھی افضل ہے۔ تو وہاں جب جا رہے ہیں تو وہاں کے آداب کو بھی محدود رکھیے، کیونکہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں صرف زیارت کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے مدینہ شریف۔ پھر وہ جاتے ہیں تو پھر شام میں 70,000 آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آگے پھر قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آپ جو ہے بار بار حاضر ہو رہے ہیں، بار بار یہ سعادت آپ کو مل رہی ہے۔ جو فرشتوں کو سعادت نہیں مل سک رہی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ تو اس کا خیال رکھیے، دعائیں کیجیے اللہ کے ذکر میں۔ اب کیا دعا کرنا، تو بعض لوگوں کا قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا ذکر زیادہ پسند تھا تو وہ ذکر کرو۔ مدینہ شریف میں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کا ذکر زیادہ پسند تھا، وہ ذکر کرو۔ اب جیسی سہولت سے کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کا کچھ خاصا بھی عمل رہا، آپ کی اپنی سہولت کے لحاظ سے عمل کیجیے اور دعا کیجیے۔ جاتے وقت تو خوش خوش جانا ہے، لیکن واپس ہوتے وقت رنجیدہ ہو کر آنا ہے کہ یہ سعادت ہم سے چھوٹ رہی ہے، دوبارہ مل سکتی ہے نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے خوش خوش جاؤ اور رنجیدہ ہو کر آؤ، تو اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور جو کچھ خطائیں ہوئی ہیں اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، کیونکہ کچھ نہ کچھ بھول ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ خطا ہو سکتی ہے۔ طواف کے موقع پر مکہ کعبے کو نہیں دیکھنا، عام دنوں میں عام حالت میں دیکھو، لیکن جب طواف کر رہے ہیں تو طواف کے وقت نگاہ نیچی رکھو۔ ایک شرمندہ آدمی جس طرح بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو ویسے خدا کے دربار میں حاضر ہوں، شرمندہ ہوں اپنے خطاؤں پر، اس طرح سے جو ہے طواف پر صرف چکر ختم ہونے پر جو ہے ہاتھ کا اشارہ اور اسلام کی صحبت دیکھ سکتے، ماں باپ کی طواف کے وقت نہیں دیکھنا ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ اور جتنے مسائل ہیں آپ سنے ہیں، بعض وقت اس سے ہٹ کے بھی کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو جاننے والوں ہمیں پوچھو، صحیح جاننے والوں سے پوچھو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ آسان کرے گا، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے گا اور آپ کے سعادت کاروبار نصیب ہوگی۔ جو لوگ اس میں انتظامات میں ہیں وہ بھی قابل بارکات ہے، لیکن آپ یہ سمجھو کہ یہ میں اپنا فریضہ انجام دینے جا رہا ہوں، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، میں اپنا فریضہ انجام دے کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے لحاظ سے آپ تکلیف، مصیبت، یہ وہ ان چیزوں کا خیال نہ کیجیے، اپنی عبادت کی فکر کیجیے، اللہ آپ کو آسان کر دے گا۔ یاسمین لگن صاحبہ ڈاکٹر اور جناب عبداللہ کوتوال صاحب، یہ صاحب، دیگر ممبران اور عالمین و عالمات، الحمدللہ یہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے
यानी तेलंगाना की तरफ से ये पहला काफिला रवाना हो रहा है। पिछले 2 महीनों से तरबियती कैंप के जरिए हमने हाजियों को किस तरीके से हज किया जाता है, मनासिक के हज पर, दीगर उमूर पर कई उलमा इकराम के खिताबात रखे ताकि उनका हज सही हो। उसके बाद सेहत का ख्याल रखने के ताल्लुक से, वहाँ पर पैदल चलने के ताल्लुक से भी लोगों के अंदर एक बात बताई गई कि वहाँ पर पैदल चलना है तो हज के नाम, हज पहला कदम के नाम से पैदल चलने की भी आदत डाली। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरीके से तैयार होकर आज आप लोग अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। वक्त कम है लेकिन आप तरबियती क्लासेस में वो हदीस भी सुने होंगे, आयत के रोशनी में भी आप हज़रात को बताया गया कि जब एक इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में जब तौबा करता है, बगैर कोई गलती की हज करता है, तो अल्लाह ताला इस तरीके से उसको पाक कर देता है जैसा कि अपनी माँ की पेट से पैदा हो। साथ ही साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई मेरे मज़ार की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो हाज़रीन इकराम, आप ये देख के जाएं कि आप किसकी बारगाह में जा रहे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा से पूछा गया, जब काबे पे हम पहली नज़र डालते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाता है, ऐ इमाम साहब बताएं कि हम क्या दुआ करें। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, जब आप काबे को देखते हैं तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें, ऐ परवरदिगार, मैं जो जो चाहे दुआ कर रहा हूँ, मेरे दुआओं को कबूल फरमा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर रहे, इबादतों में मशगूल रहे। खास तौर पर पिछले साल जो वाक़यात हुए, बराए करम उस तरीके से आप लोग वीडियोस बनाकर आने वाले आदमी के हौसलों को पस्त ना करें। एक वाक़या सुनाता हूँ, कुछ लोग बिल्डिंग में गए, जाने के बाद जैसी नल की टूटी खोले तो उसमें से पानी नहीं आ रहा था। 5 मिनट नहीं हुए, फौरन कैमरा लगाकर जब वो यहाँ पर आए, इतने आदमी ठहरे हुए हैं, वजू करना है, पानी नहीं आ रहा, फौरन वीडियो भेज दिए। 15 मिनट में पानी आ गया। बाजू वाले साहब बोले तुम जल्दी कर दिए, पानी नहीं आ रहा था, 15 मिनट में आ गया, अब ये भी एक वीडियो बना के डालो। नहीं डाले। बहरहाल वहाँ पर आपकी नज़र को भी पाक रखना है, आपके जहन को भी पाक रखना है, आपके कान को भी पाक रखना है। हज क्या है? हज को क्या नाम दिया गया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, आखिरी, उसके अंदर सरकार ने फरमाया है, अल्लाह मेरी उम्मत को हज आसान फरमा। लोग पैदल जाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग यहाँ पर एसी में बैठे हैं, खाना एसी में बैठ के खाए हैं, एसी के प्लेन में पहुँचेंगे, वहाँ पर शदीद गर्मी है, थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, उसको बर्दाश्त करें। थोड़ी तो मशक्क़त होनी चाहिए। हमारे असलाफ पैदल गए हैं, आज हम सुकून से 4-6 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। तो बहरहाल आप लोगों से ख्वाहिश है कि थोड़ी बहुत वहाँ पर लाखों का मजमा रहता है, हम जब 1000-2000 आदमी की दावत देते हैं तो मैनेज कर नहीं पाते। 30-40 लाख का मजमा होता है, छोटी मोटी वहाँ सऊदी हुकूमत करती है, स्टेट हज कमेटी का काम वहाँ का नहीं है, एयरपोर्ट तक पहुँचाना हमारा काम है। वहाँ पर आप सऊदी गवर्नमेंट के मेहमान रहते हैं, वहाँ पर छोटी मोटी तकलीफ हो गई, बर्दाश्त करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की मदद करिए। खास तौर पर नौजवानों से ख्वाहिश करूँगा कि आपके खिलौनों में जो भी ज़ईफ़ हज़रात है उनकी हल को मदद करें। और इस साल खास बात यह है कि हमारे कादिमुल हुज्जात आपके साथ यहाँ से रहेंगे। आप यह आपके ये आपके हज इंस्पेक्टर है, आपके साथ है, आपके तमाम के टेलीफोन नंबर इनके फ़ोन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ भी साथ रहेंगे। दोबारा आपको हज करा के लाकर यहाँ तक इनको छोड़ने की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह आपकी हर तरीके से रहनुमाई करेंगे, खिदमत करेंगे, और जो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ है। और हमारे तरफ से कंट्रोल रूम रुबात में बनाया जा रहा है। हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आखिरी फ्लाइट से आप लोगों के बीच रहेंगे ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह ताला हमारा कंट्रोल रूम भी 24 घंटे चलता रहेगा। कोई भी तकलीफ हुई तो इंशाल्लाह फ़ोन करिए, हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। अब वक्त की कमी की वजह से अब जनाब बस में बैठ
چکے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے. جب مکہ جائیں گے تلبیہ پڑھنا ہے, آپ یہاں سرکار کے گھر کو جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے جائیے. आगे पूरा कैमरे को पिछड़ो 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 देखिए सब इधर देखिए. जी भाई صلی علی شفیعنا صلی علی محمد आप लोग बैठ जाइए. زہ مقدر زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا. عزتماں جامعہ جامعہ کے مفتی خلیفہ صاحب, عزتماں آپ کمیٹی کے چیئرمین صاحب بیاوان صاحب, عزتماں وقف بورڈ چیئرمین صاحب, ڈائریکٹر منارٹی ویلفیئر یاسمین پاشا صاحبہ اور دیگر حضرات اور بیٹھے حج کو روانہ ہوئے ہوئے عالم نے سب کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خصوصیت ہے آپ لوگوں نے مومن کا فرض نبھانا, حج کے احکام جیسے پورے کرتے ہوئے حج کو روانہ ہونا اللہ کی دین ہے. آج حج ایک مسلمان کا فرض ہے, فریضہ ہے, عبادت ہے, وہ عبادت پوری کرنے جا رہے ہیں. میں زیادہ بولتے نہیں ہوئے اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوشی خوشی سے آپ کو اس حج کو روانہ کے لیے تیار کیا ہے. آپ اچھی خوشی سے آپ روانہ ہوئے لیے, اچھی خوشی سے اور اس کو کثرت بڑے کثرت سے حج کے احکامات پورے کیجیے. اور ضرور آپ کو دعاؤں میں جیسو اس مٹی کے لیے, اس ملک کے لیے, مسلمانوں کے لیے خیر کے لیے اور ریاست کے خیر کے لیے دعا کی اتنا کہتے ہوئے رکھتا ہوں. اللہ حافظ. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك, اللهم افتح لنا ابواب رحمتك, اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا كلها, اللهم يسر لنا امورنا كلها, اللهم يسر لنا امورنا كلها, اللهم يسر سفرنا هذا, اللهم بارك لنا في سفرنا هذا, اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر نشین میں تشریف فرما محترم مقام حضرت شیخ الحدیث مفتی
मुफ्ती खलील अहमद साहब दामद बरकातहू, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो भाई साहब, स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहतरमा यास्मीन बादशाह साहिबा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी सज्जाद साहब, तमाम हज कमेटी के मेंबरान और ख़ास तौर पर शहरशीन के सामने तशरीफ फरमा खुश नसीब आज़मीन हज। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं लाखों बार शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को सबसे पहले साहिब इस्तिताअत बनाया। उसके बाद इस साल 25 करोड़ मुसलमानों ने आपको अपने घर का इस साल मेहमान बना के बुला रहा है। अल्लाह ताला आपके सफर को आसान करे, खैर का मामला करे और हज का सफर आपका बिल्कुल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो। क्योंकि आप लोग पिछले 2 महीने से अलग अलग तरबती कैंपों में उलमाए किराम से, माहिरीन से आप हज के मनासिक हज और तमाम दीगर उमूरों पे आप लोग तरबती कैंप में आपको मालूमात हासिल होते रहे हैं और हासिल होंगे भी, और खासतौर पर आपके पास जो बुकलेट है उसके जरिए भी आपको मालूम होंगे। क्योंकि ये हज जैसा चेयरमैन साहब बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज में आपने ये खास तौर पर जिक्र किया कि अपने उम्मत को हज आसान करना है। आपने खास तौर पर दुआ किया कि इसका मतलब कि ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हज यकीनन एक मुश्किल काम है, इसके साथ अपने मुश्किलात से गुजरना पड़ना है। इसलिए हज आसान इबादत नहीं है, हज एक मुश्किल मराहिल से गुजरने के बाद हमारा हज मुकम्मल होता है। और दुनिया अपनी जिंदगी के तमाम ख्वाहिशात में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि एक बार हमारा हज हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला से हमको लाखों बार शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह हमको साहिब इस्तिताअत बनाया और अपने घर का मेहमान बना के ला रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि वक्त का तकाजा है, खास तौर पर आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखिए इबादतों के उसमें। उसके साथ साथ जो अहकामात है सऊदी हज मिशन के जो अहकामात है, सेंट्रल हज कमेटी के जो अहकामात है, उसको भी आप गौर से आप लोग दौरान सफर पढ़िए, देखिए, तो आपको सफर में आपकी कुछ चीजों के सहूलियात आपको है उससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं और आपको आसानी पैदा होगी। और खास तौर पर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप तमाम लोगों से मैं ये अदबन गुजारिश करता हूँ, अपने लिए, अपने औलाद के लिए, अपने अहले खानदान के लिए, अपने बुजुर्गान खानदान के साथ साथ इस रियासत के खुशहाली के लिए, इस मुल्क के खुशहाली के लिए, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, खैर के लिए खास तौर पर एक बार दुआ कीजिए कबतुल्लाह के पास खैर के मुल्क में अमन अमान कायम रहे, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, वक्फ बोर्ड के अमला के हिफाजत के लिए आप दुआ कीजिए और इस मुल्क में अमन भाईचारगी के लिए आप दुआ कीजिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ कीजिए। आप लोग क्योंकि आप लोग हज के लिए जा रहे हैं, आपकी दुआएं यकीनन रद्द नहीं होंगी। खास तौर पर आप इस चीज की दुआओं में सब मुसलमानों के खैर की दुआओं में आप लोग याद रखिए। इस खास तौर पर इस रियासत की और हुकूमत की जो खिदमत है मुसलमानों के लिए, उनके लिए दुआ कीजिए। वज़ीर आला जो यहाँ पर हमारे खिदमत कर रहे हैं, वज़ीर आला की और मुसलमानों के अक़लियतों के लिए और खिदमत करने के लिए आप लोग बिलखुसूस दुआ कीजिए। रियासत की खुशहाली के लिए दुआ कीजिए। हम रहमान के खातों पर मैं इन अपने चंद लफ्ज़ों के साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो लोग वॉलंटियर्स है,
आप लोग साइड में रह के तो तरतीब दिया गया बस में बैठने का, उसी तरतीब के हिसाब में बस में बैठिए। जो हजरात उनको छोड़ने आए हैं उन्होंने मेहरबानी करके उसमें खलल मत पैदा कीजिए। वो वॉलंटियर्स का काम है, वॉलंटियर्स पे छोड़ दीजिए। वो लोग हिफाजत बस में बिठाएंगे, फिर एयरपोर्ट तक भी उनकी निगरानी में जाएंगे। मेहरबानी करके जो अमला यहाँ पे हज कमेटी का है, वॉलंटियर से उनके खिदमत में आप डिस्कस मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थमते नहीं, थमते नहीं, थमते नहीं। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। मीडिया वालों के सामने हटा हुआ पीछे हटो, पीछे हटो। थोड़ा थोड़ा नीचे लियो, सामने आ ले। आपको क्या है? सामने जो है थोड़ा नीचे करो। हाथ में थोड़ा फोन चलो
भाई मीडिया वाले इतने कमरे के लो भाई لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك फोन भी चलिए थोड़ा भाई इधर लगो इधर भाई पिक्चर तो पूरा ये कहना है उम्मती बेसहारा पूरे हाजीज को भी हमने मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर किया है, वैक्सीनेशंस भी दिए गए हैं, एक ऐप भी डिज़ाइन किया है कि कहीं पे कुछ उनको तकलीफ आए तो उस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं।
और हर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको समझाई गई है। जो रूल्स रेगुलेशंस है सऊदी अरेबिया के उसको भी उनको फॉलो होना है, सब समझाया गया है। वहाँ थोड़ा हार्डशिप रहता है, उसकी जानिब से भी बहुत पानी पीना है, चलने का रहता है, सो उसकी जानिब से भी उनको इत्तला दी गई है, इन्फॉर्म किया गया है। अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट को याद करते हुए दुआ करने की गुजारिश है। और आज सबके बहुत ही आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्रिया है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला काफिला थोड़ा नीचे चल रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि तेलंगाना खास तौर पर आदमी को नहीं होना, उससे बेहतर से बेहतर खिदमत करने की हिदायत दी है। इसी की रात को भी बेगम यासीन बेगम साहबा यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे आदमी को खैर खैर से लगाएगा और खैर खैर से लाएगा। बराए करम सामने से हट जाए, काफिले को जाने के लिए रास्ता इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।